वासुदेव नमः चित्तनमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं प्रपदामह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं सागरितं श्रवण रघुनाथं श्रीजीवं सादयितं सावध परिजनसहितं कृष्णचैत्रं देवं श्रीराधाकृष्णपादं श्रवणिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधकंतनुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा साथ करुणा ना हले कंजे कंजे अपना राखियो हे दुर्गे। At the outset, I want to applaud my humble obeisance to all the devotees seeking the mercy of Prabhupada, Guru Maharaj and the Vaishnavas. Today we will discuss from Srimad Bhagavatam, Part 7, 12th chapter. Sloka number 29. इति राज्ञ उपादेश्य विप्रजातको कोविदा लब्धा अपचितय सर्वे प्रति जाग्नु स्वकाम गृहान् इति das राज्ञ unto the king upadishya having advised upadishya vipra persons well versed in Veda jataka kovida means जो लॉरेशन है तो यहाँ पे जातक का पर्सन्स एक्सपर्ट इन एक्सपर्ट persons expert in astrology and in the performance of birth ceremonies jatako kavida labdha apachitaya those who had received sumptuously as remuneration labdha means प्राप्त पाने का बाद में पा लिए अपचिताय कम नहीं बहुत ज्यादा है अपचिताय those who have received sumptuously as remuneration survey all of them Pratigamuh went back. Pratigamuh. Then Shokan, their own Shokan, अपना गृहान houses, अपना घर में चले गए. Those who were expert in astrological knowledge and in the performance of the birth ceremony instructed King Yudhishthira about the future history of his child. Then being sumptuously remunerated, they all returned to their respective homes. मतलब जो एस्ट्रोलॉजी ये जो जातक कोविद वो लोग उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज को परीक्षित महाराज का फ्यूचर हिस्ट्री बताए और देन युधिष्ठिर महाराज उनको अच्छा से दान दक्षिणा दिए देन वो अपना घर को रिटर्न किए और बात की जाती वेदोस आर द स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेदों में बहुत मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल दोनों का नॉलेज है बट सच नॉलेज एम्स एट परफेक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इन अदर वर्ड्स द वेदोस आर द गाइड्स फॉर द सिविलाइज्ड मैन इन एवरी रेस्पेक्ट since human life is the opportunity to get free from all material miseries it is properly guided by the knowledge of the Vedas in the matters of both material needs and spiritual salvation. The specific intelligent class of men who are devoted particularly to the knowledge of the Vedas were called the Vipras or the graduates of the Vedic knowledge. There are different branches of knowledge in the Vedas, of which astrology and pathology are two important branches necessary for common men. So, the intelligent men, generally known as the Brahmanas, took up all different branches of Vedic knowledge to guide society. Even the Department of Military Education, Dhanurveda, was also taken up by such intelligent men, and the Vipras were also the teachers of this section of knowledge, as well as Dronacharya, Kripacharya, etc. The word Vipra mentioned here is significant. There is a little difference between Vipra and the Brahmanas. The Vipras are those who are expert in karma kanda or fruitive activities, guiding the society towards fulfilling the material necessities of life, while the Brahmanas are expert in spiritual knowledge of transcendence.
ध्यान लिखिए, विप्र और ब्राह्मण में क्या डिफरेंस है। विप्र एक्सपर्ट इन कर्मकांड, मेटेरियलिस्टिक चीज को फुलफिल करते हैं, प्रोटिव एक्टिविटीज को फुलफिल करते हैं, करने में हेल्प करते हैं। और ये जो है ब्राह्मण स्पिरिचुअल नॉलेज को, ट्रांसमेंटल को बढ़ाते हैं। दिस डिपार्टमेंट नॉलेज कॉल्ड ज्ञान कांड। तो ब्राह्मण जो करते हैं ज्ञान कांड का ऊपर में, और विप्र हो जो ब्रह्म कर्म कांड का ऊपर में उसका नॉलेज है। The culmination of Upasana Kanda is devotional service of the Lord Vishnu, and when the Brahmanas achieve perfection, they are called Vaishnavas. बहुत important. ब्राह्मण परफेक्ट होने से वैष्णव होते हैं। विष्णु वर्शिप इज द हाईएस्ट ऑफ द मोड्स ऑफ वर्शिप। Elevated Brahmanas are Vaishnavas, engaged in the transcendental loving service to the Lord, and thus Srimad Bhagavatam, which is the science of devotional service, is very dear to the Vaishnavas. And as explained in the beginning of Srimad Bhagavatam, it is the mature fruit of Vedic knowledge and is superior subject matter. Above the three khandas, namely karma, jnana, and upasana, that is the subject matter. Vedic knowledge is superior subject matter above the three khandas, namely karma, jnana, upasana. Amongst the karmakand experts, the Jataka expert Vipras were good astrologers who could tell the future history of a born child simply by the astral calculation of the time, lagna. Such expert Jataka Vipras were present during the birth of Maharaj Parikshit and his grandfather Maharaj Yudhishthira. And his grandfather Maharaj Yudhishthira awarded the Vipras sufficiently with gold, land, villages, grains, and other valuable necessities of life, which also include cows. There is a need of such a Vipras in social structure, and it is the duty of the state to maintain them comfortably. As designed in the Vedic procedure, such expert Vipras being sufficiently paid by the state could give free service to the people in general, and thus this department of Vedic knowledge could be available for all. तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छा से हर प्रभुपाद का किताब में आपको सारे चीज का नॉलेज मिल जाता है। एंड कर्म कांड हो, उपासना ज्ञान कांड हो, क्या है क्या नहीं है, सारे नॉलेज आपका यहाँ पे मिल जाता है। प्रभुपाद सारे जगह से लेके यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, इसलिए बोले फास्ट कैंटो ईस्ट। ये फास्ट कैंटो में प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम ने प्रभुपाद ने सारे तात्पर्य में इतना सारे भर भर के दे दिया नॉलेज कि आपका जितना भी डाउट है वो सारे डाउट यहीं पे मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग बहुत डाउट रहता है यहाँ पे आज का बारे में एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज बताया गया। तो एस्ट्रोलॉजी इज इम्पोर्टेंट और नॉट, हम लोग पहले भी डिस्कस किया था। तो एस्ट्रोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, एस्ट्रोलॉजी वेदों में है, ये वेद का सब्जेक्ट मैटर है। तो इसका मतलब है कि कोई भी नॉलेज है वेद से आ रहा है। वेद मीन्स बॉडी ऑफ नॉलेज। वेद का सारांश क्या होता है, एम क्या होता है, एनीबॉडी? भगवत गीता में हम लोग पढ़े थे, व्हाट इज वेदों का एम क्या है। वेद पढ़ने का, वेद का जो रचना किया गया है भगवान व्यासदेव ने लिखा, इसको रिटन डाउन कर दिया। भगवान का मुख्य वाणी है, लेकिन उसको व्यासदेव ने सब राइट किए, लिखा मतलब वो बोला, फिर गणेश जी लिखे। तो वेद में क्या है, वेद मीन्स बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब सारे ज्ञान इसमें है। इसको निगम कल्पतरु ऋषि बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वेद का राइट पेंड फ्रूट है, मतलब वेद को एक पेड़ मानेंगे, एक मैच्योर ये होगा, तो उसका जो फ्रूट्स है वो जो उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। वेद का सारांश है, वेद का जूस है, मतलब वेद का एसेंस है, सारे वेद का, इसलिए वेदांत भी बोलते हैं। वेद का अंत इसमें, मतलब सारांश इसमें रहता है श्रीमद् भागवतम। तो वेद में सारे आपको मालूम होगा, धनुर्वेद, आयुर्वेद, ये जितना वेद में ही सब कुछ है। मतलब नॉलेज अबाउट सब भारतनाट्यम आया डांस का वेद में है, कैसे गाना है, सारे गामा पा, ये सब वेद से है।
तो मतलब जो सारे चीजें आप जो ढूंढेंगे वेद में मिल जाएगा आपको। एस्ट्रोलॉजी का बारे में जानना है, वेदों में मिलेगा, इसलिए एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे। तो वेदों का जो है, वेदों को 3 भाग में डिवाइड किया गया, बेसिकली 3 सब्जेक्ट मैटर उसमें डील किया गया है बेसिकली, कर्म कांड, ज्ञान कांड एंड उपासना कांड। कर्म कांड, ज्ञान कांड एंड उपासना कांड में डिवाइड किया गया, मतलब श्लोक है इसमें। इसमें 80% कर्म कांड है, 18% ज्ञान कांड है एंड 2% उपासना कांड है। तो कर्मकांड क्या होता है? कर्मकांड वही होता है कि कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ मेटेरियल डिजायर को फुलफिल करने के लिए जो चीज बताया गया है उसको कर्मकांड सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है, माने उसमें अंतर्भुक्त किया जाता है। सपोज हमको एग्जांपल ले लेते हैं, हमको कोई बड़ा पोजीशन चाहिए या हमको कोई पुत्र चाहिए, तो पुत्र बोलते हैं पुत्रष्टि यज्ञ करो। तो उसका परफॉर्मेंस क्या क्या करना है, पुत्रष्टि यज्ञ कैसे होगा, ये सब होगा, वेदों में डिस्क्राइब किया गया है। तो कुछ प्राप्त मेटेरियलिस्टिक चीज पाने के लिए वो जो कर्म करते हैं, देव देवी को पूजा करते हैं इसके लिए, क्योंकि सब चीज का एक इंचार्ज होते हैं, सारे का इंचार्ज भगवान है। तो सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तो भगवान कृष्ण सर्व ईश्वर का ईश्वर है, लेकिन ये ईश्वर लोग को भगवान ने कुछ ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, हम लोग भी एक कंट्रोलर है, हम लोग को बोलते हैं मिनी कंट्रोलर। हमको भी कुछ इंडिपेंडेंस दिया गया है, माइनर इंडिपेंडेंस, लेकिन उसका ऊपर में एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। जैसे सन गॉड है, ये इंद्रदेव है, वर्षा करेंगे, वृष्टि करते हैं। तो डिफरेंट डेमीगॉड्स आर दी डिपार्टमेंटल हेड है, उसका ऊपर में भगवान जी प्राइम मिनिस्टर। आप कंपेयर करने से तो ये इनका माध्यम में हमको सब कुछ मिलता है, लेकिन भगवान उनको पावर दिया है डे टू डे अफेयर्स में, हमको ज्यादा इंटरफेयर करने का नहीं है, या हमको कुछ नहीं है। मेरा किताब रूल बना दिया गया और उसका बाद में डिपार्टमेंट का हेड को पकड़ा दिया, ये रूल है, आप इस रूल का हिसाब से काम करिए। जो अच्छा काम करेगा वो आपको आप वो फल दे सकते हो, जो बुरा करेगा आप उसको नहीं कर सकते हो, नहीं दोगे हो। तो ये रूल बता दिया। कर्मकांड ये हो गया कि कर्मकांड में कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज, फ्रूटिव एक्टिविटीज का रिजल्ट चाहिए, फल चाहिए, हमको कुछ प्राप्ति करना है, भौतिक चीज को प्राप्ति करने के लिए। ज्ञान कांड में है वो थोड़ा ऊपर में है, तो उसमें आपका क्या होगा, थोड़ा थोड़ा देवोदेवी, कर्म कांड में देवोदेवी का पूजा करते हैं, ज्ञान कांड में थोड़ा थोड़ा जाएंगे, जो एटलीस्ट मैं यहाँ पे क्या कर्म कांड में शरीर का बारे में, शरीर का फुलफिलमेंट है, हमारा जो डिजायर है, शरीर की डिजायर है, भौतिक डिजायर, उसको फुलफिल करना है। तो ज्ञान कांड में थोड़ा शरीर का ऊपर में जाना है, जो आत्मा शरीर से इम्पोर्टेंट है। तो ज्ञान कांड में इसलिए आपका विष्णु का बारे में धीरे धीरे पता चलता है कि सारे देवता का ऊपर में जितना भी यज्ञ हम देवता लोग के करते हैं, उसमें विष्णु यज्ञ करता है। तो यज्ञ का अधिकारी जो ये लोग लेके, इनको कुछ भाग पोर्शन यज्ञ का मिलेगा देवदेवी को, लेकिन अल्टीमेटली वो सेटिस्फाई करना है उनको विष्णु को, जो कि कृष्णा है, आदि विष्णु। तो इसलिए वो ज्ञान कांड में थोड़ा ऊपर जाते हैं, विष्णु का तक पहुंचते हैं, पता चलता है कि एक विष्णु एक भगवान है, एंड हम शरीर नहीं है, हमारा आत्मा का भी सदगति करना है। तो नेक्स्ट लाइफ के लिए हमको सोचना चाहिए। कर्मकांड में इसी लाइफ का है और कुछ फल मिलेगा तो नेक्स्ट लाइफ है, लेकिन एटलीस्ट आत्मा का बारे में सोचना है, आत्मा का बारे में ज्ञान आरण करना है, तो पता आत्मा कौन है, शरीर क्या है। तो ज्ञान कांड उसका बारे में नॉलेज देते हैं, नॉलेज अबाउट दैट बॉडी, एंड बॉडी का तो है, उसका आत्मा का नॉलेज, सोल का बारे में देगा, ये सुपर सोल का बारे में। तो देन उसका ऊपर में आ जाएगा उपासना कांड, भगवान को कैसे पूजा करेंगे। यहाँ पे तो कर्म कांड को देवो देवी को पूजा करते हैं, लेकिन दी डिपार्टमेंट नॉलेज कॉल्ड ज्ञान कांड, अबव दिस देयर इज उपासना कांड। और उपासना कांड मींस भगवान को विभिन्न प्रकार विधि विधान में भगवान का पूजा करना है, उपासना करना है। और उसका ऊपर भी उसका जो हाईएस्ट हो जाएगा, जब वो उपासना मींस अभिदेव प्रोसेस, तो वो करते 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 फाइनल हाईएस्ट पे भक्ति योग में पहुंचेगा।
तो कर्म ज्ञान देन ध्यान देन भक्ति जैसे बोलते हैं। तो इसलिए वो उसका होते होते उपासना कांड का जो कल्बिनेशन हाइट है वो पहुंचता है तो भक्ति योग में। इसको बहुत ध्यान दीजिए। तो कर्मकांड का जो विधि जो हेल्प करते हैं कोई ब्राह्मण है उसको बोलते हैं विप्र। जो विप्र लोग है ये एक ब्राह्मण से नीचे होते हैं। तो ऐसे बोलते हैं जो कलयुग में सब कोई शूद्र है, कलु शूद्र संभव। लेकिन संस्कार भवे द्विज, संस्कार होने से हम लोग उपनयन संस्कार होता है तो वो द्विज बनता है। द्वितीय जन्म हुआ, सेकंड लाइफ, मतलब सेकंड जन्म हुआ। पहले गर्भधारण संस्कार में एक्चुअली संस्कार होना चाहिए और सेकंड जन्म है जो उपनयन संस्कार, जब गुरुदेव ने सेकंड इनिशिएशन देंगे तो ये द्विज होंगे। और उसका बाद में द्विज से उसका बाद में ऊपर में जाएंगे तो वेद पाठन भवेद विप्र, वेद अध्ययन करके वेद में क्या है कर्मकांड विधि है, देवता लोग का मतलब पढ़ाई करना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए वेद का बारे में और उसी हिसाब से पूजा करेगा तो विप्र हो गए। उसका वही विप्र का ऊपर कैटेगरी में आने से फिर ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण जानती थी ब्राह्मण, ब्राह्मण मीन्स आत्मा की ब्राह्मण, जीव ब्राह्मण, परमात्मा परम ब्राह्मण, ये दोनों का बारे में बताना चाहिए। तो आत्मा या ब्राह्मण परम ब्रह्म का सेवा में लगेगा, इसको पता होगा तो उसको स्टार्ट करेगा प्रोसेस में तो ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण होते होते प्रैक्टिस करते करते जब वो कल्मिनेशन में भक्ति में हाईएस्ट लेवल शुद्ध भक्ति में पहुंच जाएगा या एटलीस्ट भक्ति का बिगनिंग होगा तो वैष्णव है। शुद्ध वैष्णव तो हाईएस्ट में पहुंचेंगे तो भक्ति में परफेक्ट होंगे। तो ये प्रोसेस है, ये विप्र, द्विज, विप्र, ब्राह्मण देन वैष्णव, ये सब याद होना चाहिए। तो द्विज देन विप्र देन ब्राह्मण, संस्कार होने से द्विज बनेगा और वेद पाठ अध्ययन करेगा, इसलिए त्रिवेदी चतुर्वेदी, तीन वेद का ऊपर में पढ़ाई करते हैं, एक्सपर्ट है तो उसको बोलते हैं त्रिवेदी। चतुर्वेदी जो चार वेद का ऊपर में उसका साम साम अथर्व ये सारे चार का ऊपर में उसका है तो उस एक्सपर्टाइज है। लेकिन वो एक्सपर्टाइज का मतलब है क्या है, वेद का एक्सपर्टाइज मतलब वेद का ऊपर में सारांश क्या है बताना चाहिए, वेद किस लिए बना हुआ है, लिखा गया है, कौन लिखा है, किस लिए लिखा है, भगवान ने इसको ये किया है और भगवान को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। तो इसीलिए वेद को अध्ययन करना चाहिए, किस लिए भगवत गीता में 15 अध्याय में 15 श्लोक में इसलिए बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान बोल रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त श्रुति ज्ञानम अपनम से वेदेश सर्वम अहम वेद्य वेदांतकृत वेदविद एवं हम, मेरे से मैं सबका हृदय में बैठा हूँ परमात्मा के रूप में और सबसे मेरे से ही सबको नॉलेज मिलता है और बहुत वेदों भी हमारा एक मुखनिश्चित वाणी है, भगवान के बारे में वहां पे लिखा गया है और उसका सारांश क्या है, वेद का सारांश मेरे को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए। अगर वेद पढ़ के अगर भगवान को नहीं जान पाया तो वेद का ठीक से पढ़ाई नहीं हुआ। वेद का पढ़ के देवदेवी पूजा करके रह गए तो परफेक्ट नहीं है, वो स्टार्टिंग स्टेज है, वो विष्णु को पता ही नहीं उस टाइम में। तो इसीलिए यहाँ पे ये कर्मकांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड, तो कर्मकांड से विशेष भांड मतलब ये मेटेरियलिस्टिक चीज इसमें है। ऐसे हम अच्छा में रहेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा जैसा ख्याति मिलेगा, फेम नेम एंड ऑल दिस थिंग्स, उसके लिए कर्मकांड करते हैं। या नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में भी एक धनी घर में पैदा होना है या जो भी करना है, सड़क सुख में रहना है तो मेटेरियलिस्टिक दान देते हैं लोग, बहुत कुछ अन्न दान करते हैं, बढ़िया है, वो धन दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, ये सब करने से क्या होगा, ये करने से सब अच्छा मिलेगा आपको नेक्स्ट लाइफ में और इस लाइफ में रिटर्न मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है वेदों को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो और एक एग्जांपल ले लीजिए, हमारे टीचर बताते थे। आप जैसे अमेरिका वगैरह जाएंगे वहां पे देखेंगे एयरपोर्ट में बहुत सारा टर्मिनल होगा तो या बहुत सारा गेट है, सपोज वहां पे 100 गेट्स है। कोई फ्लाइट बोस्टन से आया, न्यूयॉर्क से वो सैन फ्रांसिस्को जाएगा सपोज, तो वो लिखा होगा ये बोस्टन वाली फ्लाइट न्यूयॉर्क में ये जो गेट नंबर 5 में पहुंचेगा, लेकिन आपको फिर वो सैन फ्रांसिस्को के लिए गेट में कौन सा गेट से पकड़ना है, 88 या 98 जो भी गेट से पकड़ना है। तो वहां पे वो हमारे टीचर बताते थे, हम तो गया नहीं है,
लेकिन बोलते थे वहां पे निकलने से आपको एक रोलिंग या स्लाइडिंग जैसे माने रोलिंग एलिवेटर टाइप का माने हॉरिजॉन्टल एलिवेटर है, आप वहां पे जाकर खड़ा होते हैं। फ्लाइट में हमारे एयरपोर्ट में भी मिलता है, तो वो खड़ा हो जाएंगे तो मूव करता रहता है, तो आपको डेस्टिनेशन तो आगे जाते हैं। आपका 5 से चढ़ गए, 5 नंबर गेट से चढ़े तो आपको कितने इतना बहुत बड़ा है तो इसलिए 98 में पहुंचना है, तो उसी में चढ़ जाइए, वो आपको आप ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाइए, वो लेके 98 में पहुंचा देगा। या आपको 100 गेट में पहुंचना है तो 100 गेट में फिर आप उतर जाइए। कोई 15 नंबर गेट से चढ़ा, उसको भी 100 गेट में जाना है तो 15 से चढ़ेगा तो चला जाएगा, 100 में उतर जाएगा। कोई 80 नंबर गेट से चढ़ा, उसको 100 में उतरना है तो वो भी जा सकता है। तो इसके कहने का मतलब यही था, वेद में डिफरेंट डिग्री का पढ़ाई है, उस कोई भी उसी लेवल से शुरू करता है, उसको लेके भागवतम लेवल में, उसको लेके भगवान को जानने के लिए जो प्रोसेस है, उस लेवल में पहुंचाने का काम है वेद का। अगर हम सही ढंग से अगर वेद को फॉलो करते हैं तो हम भगवान का पास में पहुंच सकते हैं, लेकिन इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे 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 होकर चलता है। लेकिन अनदर प्रोसेस एक लिफ्ट प्रोसेस है। आप उसको कर्मकांड विधि को नहीं करते हुए, फॉलो नहीं करते हुए भी, वेद का सारक श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, इसको अगर हम लोग ले लेंगे तो डायरेक्टली उसी को पढ़ते हुए भी आप सारे वेद का बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि आपको अल्टीमेट एम पता चल गया। तो अल्टीमेट एम से जैसे हम लोग पता चला कि भक्ति इंपॉर्टेंट है, तो भक्ति अंडर में पता चला कर्म ज्ञान ध्यान सब इंक्लूडेड है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली वो करेंगे तो ये ऑलरेडी हो ही जाता है। ग्रेजुअल ग्रेजुअल प्रोसेस में नहीं जाना है। जो लेस बुद्धि संपन्न, जिसका बुद्धि कम है, उसको ग्रेजुअल प्रोसेस में जाना चाहिए। जिसका जो भाग्य अच्छा है, उसका भाग्य अच्छा है मतलब ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन भाग्यवान जीव, भाग्य अच्छा है तो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, उसको भक्ति का बीज मिल जाता है। तो इसलिए क्योंकि बहुत लोग कर्म कांड ज्ञान कांड ध्यान कांड में रह जाते हैं, उसका बाद में भक्ति में पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि इसी में ही टाइम चला जाता है और इसी में हम लोग एनर्जी चला जाता है, रिसोर्सेज चला जाता है, और कभी कभी उसी से कुछ फल मिल जाता है तो हम उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं। सपोज एक आदमी कर्मकांड विधि में है, देवदेवी पूजा कर रहा है, उसको 10 करोड़ 100 करोड़ का पैसा मिल गया, अभी उसको नौकरी नहीं करना है, भगवान का पूजा नहीं करना है, पैसा तो मिल गया वो सोच के वो नहीं करेगा। हमारे प्रभु ने एग्जाम्पल देते हैं कि हम लोग जगन्नाथपुरी दर्शन करने के जा रहे हैं, तो रास्ते में हम जाते हैं, साकी गोपाल का पास में पेड़ बहुत अच्छा नारियल का पानी मिलेगा, है ना, तो हम लोग थोड़ा सा इतना दूर चला गया, थोड़ा छाया में बैठ जाइए, वो नारियल वाला नारियल पानी पिलाएगा, और आप थोड़ा बैठ गए और अच्छा हवा आ रहा है गर्मी का दिन में, तो नारियल पानी पी के आप सो गए। जगन्नाथ जब नींद टूटा, जगन्नाथ मंदिर बंद हो चुका है उस टाइम है, फिर बोले क्या करे कि रिटर्न हो जाए, या मतलब व्हाई इट इज दिस एग्जांपल इज गिवन। कभी कभी क्या होता है, हम लोग उसी चीज में कुछ इंटरेस्ट लग जाता है, उसी में कुछ थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। कोई पियन को कोई आके बोलेगा भैया मेरा फाइल थोड़ा आगे बढ़ा, तो वो भी पियन लेवल में रहता है, 500 रुपया मिल जाता है और अंडरहैंड कुछ मिल गया, हाँ बढ़िया है, वो थोड़ी चाहेगा कि मैं हाँ कलेक्टर बनूंगा, है तो उसी टाइप का यहाँ पे कि अच्छा आराम मिल गया। तो हम लोग, मैं भी प्रोसेस में एक बार गया था, मतलब मैं देखा था, टेस्ट मिला है मेरे को। मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग साथ में इंडियन टेलीकॉम सर्विस में ज्वाइन किया, उड़ीसा का व्यक्ति है मेरा फ्रेंड है, उसमें हम लोग ये पहले मिल के ये हरे कृष्ण महामंत्र में जप किया, क्योंकि वो एक ही हम लोग साथ में थे। उसके बाद में कुछ दिन का बाद में मैं देखा थोड़ा उसका ट्रेनिंग का बाद में अलग हो गया, मैं अलग हो गया, हमारा ट्रेनिंग का साथ में पास पास पे रहते थे हम लोग, सेम आगे पीछे ऊपर नीचे क्वार्टर था, मिलकर हम कुकिंग करते थे। कुछ दिन का बाद में हम लोग, वो अलग पोस्टिंग, मेरा अलग पोस्टिंग उड़ीसा में आ गया, वो बाहर में चला गया यूपी में, उसका वाइफ उधर थी। तो देन वो हम एक बार गए थे, एक IEME IEEE का ये था, मतलब चलते हैं जाते हैं, तो गया था, तो मेरे को बोला भैया, वो मेरे से एक साथ जूनियर कॉलेज में था, तो बोला भैया एक काम करते हैं, आजकल में वो एक्स बाबा का हम जो है प्रोसेस में है, उसमें हम क्या करते हैं ना, ध्यान करते हैं, वो ये ध्यान बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया है, 1-1.5 घंटा लगेगा। मैंने चलो प्रैक्टिस एक बार देख लेते हैं, तो उसका क्वार्टर में थे तो इसलिए उसको मना नहीं कर सकते ना, तो मैं प्रैक्टिस किया, तो नाक बंद करो, अनुलोम विलोम, वो सब अच्छा है, तो इसको करते करते ध्यान करो, ये करते करते 1.5 घंटा गया, मेरे को बहुत शांति मिला, वो जो बोला था सही था, वहाँ बहुत शांति मिला। तो अगर शांति मिला, वो क्या कर किया, अभी वो शांति में फंस गया, मतलब वो
जब फप और नहीं किया। जब अभी कभी कभी करता है, एक माला करता है या हाथ में हरे कृष्ण कर देता है, रास्ते में कर लेता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट है। बट वो 99 में प्रोसेस में आया हमारा साथ में, लेकिन अब जब फप नहीं। मेरे साथ में जब था तो नॉनवेज फप में छोड़ दिया, भाई नॉनवेज नहीं खाना है। हम लोग बाद में यहाँ पे आकर देखे, लेकिन वहां पे बाद में उसका भी नॉनवेज चल रहा था, क्योंकि बोला मेरा बच्चा लोग खा रहा है, तो छोड़ दिया, लेकिन फिर शुरू कर दिया। लेकिन शांति मिलता है। अभी भी वो 5-10 किलोमीटर रनिंग करता है, अच्छा है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन वो जो मेन एम है उसको भूल गया, जो आत्मा का बेनिफिट को भूल गया, शरीर का बेनिफिट में खर्च के हम लोग शरीर बेनिफिट करना चाहिए, लेकिन वो आत्मा का नहीं किए तो क्या होगा अभी जानते हैं। लेकिन एसोसिएशन छूट गया और दूसरा एसोसिएशन आ गया, सो कॉल्ड बाबा का ध्यान में आ गया। वो शरीर के लिए अच्छा है, शरीर पतला दुबला है एकदम, उसका पेट अंदर में चला गया, यू कर्व टाइप का। हमारा तो पेट ऊपर से निकलता है, उधर हो जाता है। हाँ, तो ये सारे जड़ी बूटी या जो भी बड़े पत्ता क्या खाते हैं, क्या खाने से कैसे रहेगा शरीर, गुड। लेकिन पता नहीं शरीर को कितना दिन हम रक्षा कर सकते हैं, करना चाहिए भक्ति के लिए, शरीर रक्षा करना है। लेकिन जो एम था भक्ति में करना है वो चला गया। हमारा टीचर ने हमारा उसमें आए थे उस टाइम जबलपुर में, वो भी था उस टाइम में। तो मैं तो एक बार मिला, दूसरा बार मैं छुट्टी में चला गया था दिया, लेकिन कुछ साधु से मिला, फिर भी वो छूट गया। मेरा कहने का मतलब कुछ है, कहने का मतलब कर्म कांड में ऐसे रहेंगे या ज्ञान कांड या ध्यान कांड, ध्यान करें, उसमें शांति मिलेगा। शांति, ओम शांति, ओम शांति, ये शांति मिलेगा, खराब नहीं है। हमको शांति चाहिए ना भक्ति चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। हमको कल डिस्कस किया था एंजाइटी, भैया स्पिरिचुअल एंजाइटी रहेगा, एंजाइटी नहीं रहेगा, शांति टेम्पररी आएगा, 1 घंटा आएगा, आधा घंटा 2 घंटा। अभी भी उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ, जर्नी नहीं कर पा रहे, ट्रांसफर हो गया था, 6 महीने 7 महीने छुट्टी में है। बोला भैया मेरा जिंदगी में इस टाइप का टेंशन कभी नहीं आया, मैं तो बोलने वाला था इतना शांति में है, तो अभी टेंशन क्यों आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब है टेंशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बाय दिस प्रोसेस, पर टेंशन को पूरा कंप्लीटली जीरो नहीं कर सकता है, क्योंकि कंप्लीटली जीरो करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे एंजाइटी को, टेंशन को कन्वर्ट करना है, भगवान के लिए टेंशन लेना है। क्या लेना है? भगवान के लिए टेंशन। आपको भगवान के लिए टेंशन नहीं लेगा, माया टेंशन देगी। इसीलिए क्या बोलते हैं कि कब माया किस ऑफ माया इज बेटर देन, माने किक ऑफ कृष्णा इज बेटर देन किस ऑफ माया, किक ऑफ कृष्णा इज बेटर देन किस ऑफ माया। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक लाइन है। कृष्ण किक देगा तो एंजाइटी आएगा नहीं आएगा, कृष्ण किक देंगे, माया किस करेंगे, हम किसको लेंगे। तो यहाँ पे मेटेरियल शांति मिल गया, तो शांति मिल गया, शांति में रहना है। वो शांति परमानेंट शांति नहीं है, वो दाटू जड़ सुख है, मेटेरियल हैप्पीनेस है, वो थोड़ी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। क्या स्पिरिचुअल एंजाइटी में ही स्पिरिचुअल हैप्पीनेस घुसा हुआ है, स्पिरिचुअल एंजाइटी में स्पिरिचुअल हैप्पीनेस घुसा हुआ है। तो सुख शांति है, आनंद जो नया है उसके लिए हम लोग दोबारा रिपीट कर देते हैं। सुख जो है शरीर के लिए, जो हम लोग जो बैठ के ध्यान कर रहे हैं वो क्या क्या मन का शांति होता है, लेकिन में आत्मा शांति नहीं होता है। डिससेटिस्फेक्शन है, मेरा नौकरी में प्रमोशन नहीं हुआ, अगर शांति में रहा फिर डिससेटिस्फेक्शन क्यों है, अंदर में डिससेटिस्फेक्शन है? तो ये जो सभी पुंस परधर्म जत भक्ति अध्यक्ष थे अहैतिक अप्रतियत ये आत्मा सुप्रसिद्धि। अगर आत्मा परमात्मा का सेवा नहीं करेगा तो शांति नहीं मिलेगा। वो शांति बोलते हैं आनंद है, जो सुख है आत्मा के लिए, शरीर के लिए सुख, मन के लिए शांति, आत्मा के लिए आनंद, परमानंद, भगवान का साथ में जोड़ना है। तो लेकिन हम तो सुख चाहते हैं, हम भूख लग रहा है तो अच्छा से कुछ खाना, नॉनवेज खा लो, ये मिल गया सुख। हाँ, शांति, शांति मतलब माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। स्विच ऑफ ऑल द थिंग्स, एसी में बैठ जाओ, ध्यान करो। लेकिन ध्यान कितना टाइम करेगा? हमारा टीचर बोलते हैं ध्यान करेगा हाफ एन आवर, 24 घंटा से हाफ एन आवर ध्यान करेगा, 23.5 आवर सेक्स के लिए इंटरेस्ट है। मतलब बोले क्या, हाफ एन आवर ध्यान करेगा, 23.5 घंटा सेक्स का पीछे भागेगा हम लोग। तो ये दुनिया तो मिथुन अगार मैथुनागार, इसमें सेक्स का जकड़ है। मतलब ये जो है ना, ये बंधन सेक्स के में बांध देता है। मतलब हस्बैंड वाइफ इसके लिए है, सेक्स के लिए। बिना हस्बैंड वाइफ भी आजकल लिव इन रिलेशनशिप सेक्स के लिए,
तो इसके लिए क्या होगा? तो शादी का लड्डू, दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। जो कर दिया शादी वो पछता रहा है। मेरा बीवी का तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा पढ़ाई नहीं किया, उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा इतना नहीं है, ऑफिस से कम पैसा मिल रहा है, करप्शन करो या कुछ करते हैं। तो ये करके फिर टेंशन, करप्शन करेंगे फिर कोई पकड़ लेगा क्या? विजिलेंस, तो ये सब आ जाएगा। तो इसलिए इसका एक गाड़ी है, हमारा 2 गाड़ी होना चाहिए, नहीं तो उसका गाड़ी, हमारा गाड़ी पुराना हो गया, नया गाड़ी खरीदना है। उसका एक प्लाट है, इतना बड़ा बना दिया, उसका घर में हम गए थे, बीबी गई थी देखने के लिए, अरे इतना बढ़िया सजाया, हमारा सजाया नहीं। तो लाइक दिस समझ नहीं, उसका घर में 5 कुत्ता है, मेरा घर में 7 कुत्ता आना चाहिए, वो 2 बिल्ली रखा है, मैं 3 बिल्ली रखना चाहिए। और इसके बाद में उसका घर में इतना नौकर रहकर है, मेरा नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा? लोन कर लो, लोन कर लो, एंग्जाइटी, फिर लोन का पेमेंट नहीं करा, सुसाइड करो। इस तरह का कॉफी कॉफी डे का, कॉफी कॉफी डे है। अच्छा, उसका एक व्यक्ति सुसाइड कर लिया मालिक। तो क्या है, बस इतना बड़ा बिजनेस करना है, वो कोई है उस दिन बोला था बिजनेस करना है, पैसा कमाने, लोन ले लिया, उसका लोन का रिपेयर नहीं हुआ, चलो क्या करेगा, सुसाइड करेगा। ये तो इंसिडेंट है। पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, आईआईटी में नंबर 1 है, नेक्स्ट सेमेस्टर में सेकंड नंबर हो गया, सुसाइड करो। ये होगा, शांति नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे भक्ति नहीं कर रहे, शांति के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। अगर वो कोई भक्ति कर रहा है शांति के लिए तो उसको छोड़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए यहाँ पे शांति मिलना नहीं है, हमको यहाँ पे आनंद लेना है। आनंद किसमें है? भूखा रहते भी आनंद मिलता है, भूखा रहकर आनंद मिलता है। यस, जन्माष्टमी 12 बजे तक भूखा रहेगा तो उसमें आनंद मिलेगा। कृष्ण, हमारे प्रभु ने बोलता था कृष्ण हैरान होगा, कृष्ण विल बी, कृष्ण क्या होंगे, अरे मेरे लिए 12 बजे तक 12 घंटे 24 घंटा फास्टिंग कर रहा है और हमको इतना अच्छा से खिला रहा है। कृष्ण हड़बड़ी जाएंगे, कृष्ण बोलेंगे अरे भैया इतना मेरा भक्त है, ये इतना मेरे लिए कष्ट कर रहा है, तो लेकिन इसको कष्ट नहीं लग रहा है। अरे एकादशी है 12 बजे तक, अरे क्या 24 घंटा भी एकादशी कर लो, आगे आगे आ रहा है पांडव निर्जला एकादशी, सबसे डिफिकल्ट है। मैं तो सोचता हूँ जन्माष्टमी से भी ज्यादा है, क्योंकि जन्माष्टमी तो रात 12 बजे तक आप लोग कुछ कर सकते हो, लेकिन इसमें तो नेक्स्ट डे फिर फास्ट ब्रेकिंग टाइम में पानी लो, मतलब 24 आवर्स से ज्यादा। कभी रात 12 बजे आप ले आओगे, उसका पहले से नेक्स्ट डे 6:30-7 बजे आज थोड़ा जल्दी। अरे अरे एक मिनट, हम लोग जो ब्रेक नहीं किए हैं, पराना टाइम 7:59, जस्ट ब्रेक कर लीजिए। हरे कृष्ण, 1 मिनट। हरे कृष्ण। तो थोड़ा पारायण टाइम था, ये एकादशी का नेक्स्ट है द्वादशी में फास्टिंग ब्रेक करना पड़ता है पारायण टाइम के अंदर में, नहीं तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स फल के भी अब काम नहीं करते हैं, बात नहीं है। तो क्या बोल रहे थे, तो इसीलिए कर्म कांड, हाँ, तो क्या हुआ, शांति के लिए भक्ति नहीं करते हैं, आनंद के लिए। और ये आनंद कैसे मिलेगा? कष्ट करते हुए। भक्ति में जितना कष्ट है, भगवान के लिए कष्ट करेगा उतना आनंद मिलेगा, जस्ट उल्टा है मटेरियलिस्टिक से, अलग से। तो इसलिए हमको कष्ट करना है, कष्ट भगवान के लिए कष्ट करना है, भगवान के लिए एंग्जाइटी लेना है। तो भगवान के लिए एंग्जाइटी लेगा तो मेटलिस्टिक एंग्जाइटी नहीं आएगा।
हम अपना बच्चा, बीबी, फैमिली इसका अभी इसका एंजाइटी नहीं लेना है। भगवान के लिए एंजाइटी लो तो वो एंजाइटी यहाँ से खत्म। कहाँ से? तो आइदर, इसीलिए किक ऑफ कृष्णा इज बेटर देन किस ऑफ माया। किस ऑफ माया मालूम है? जैसे पहले कौन रखते थे? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से बढ़ाया, इसको बोला सम्राट बनाऊंगा धनानंद का अगेंस्ट में, क्योंकि उसको धनानंद इसको ये क्या था, अपमान किया था, एंड ही वाज आल्सो नॉट गुड रूलर। तो इसीलिए चाणक्य ने बनाया। उसका डेली कुछ देता था खाना में, बोल रहे थे कि डेली कुछ कुछ 20 उसको मिलाना है, 20 थोड़ा थोड़ा डोज, जो कि हो चुका, बढ़ाया फिर। मतलब ये क्या है, 20 इसको शरीर में रह गया पॉइजन, तो क्या होगा? पहले को तो क्या होता था, राजा लोग जो सम्राट बनना चाहता है या जो बड़ा राजा को परेशान खत्म करना है, तो युद्ध से तो नहीं होगा ना, तो साम दाम दंड भेद यूज करेगा। भेद यूज करना है क्या? तो भेज देंगे किसको? जो नर्तकी है, क्या बोलते हैं वो, उनका सर्प है, मतलब दे आर ऑल्सो पॉइजन, उनको भी बचाया जाता है पॉइजन करने के लिए। वो जाके अगर उसको पीस कर देगा या जो भी कर देगा या दंशन करेगा तो राजा मर जाएगा। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को 20 देते थे, सो दैट इसका 20 रहेगा तो वो कोई आके उसको भी खत्म करना चाहते हैं 20 दे के, या कोई वो होगा नहीं, तो ये इसका 20 उसका 20 काटेगा, 20 को काट लेगा बस। तो इसीलिए तो हम लोग को किक ऑफ कृष्ण इज बेटर देन किस ऑफ माया। तो हम लोग को शांति चाहिए तो कृष्ण कॉन्शियस छोड़ दीजिए। हमें में कितना एंजाइटी में है आप पूछ लीजिए, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल एंजाइटी। आज भक्त वहां पे कोई भी भक्त नहीं है, कौन पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, तो सीनियर डिवोटी कोई है पुरुषोत्तम महीना, ओह पुरुषोत्तम महीना, यहाँ हमको प्रभु भी बता रहे थे, मैं भी, मेरे को सुन के भी थोड़ा हंसी लगा, तो क्योंकि थोड़ा सा फिलोसफी बताना चाहिए, किसी को हम लोग ये नहीं करना चाहिए, बट एनीवे उसका अपना अपना फिलोसफी होगा। लेकिन गुरुदेव जो सेवा दिया उसको छोड़ के हम लोग भाग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पुरुषोत्तम महीना, चलो उधर, कहाँ पे? वृंदावन। अभी गौर पूर्णिमा है, गौर पूर्णिमा कहाँ चले? नवद्वीप धाम मायापुर, क्योंकि वहां पे चैतन्य महाप्रभु को बात प्लेस है। भैया वो जो यहाँ पे रघुनंदन धाम में लॉर्ड राम जी जो बैठे हुए हैं, उनको कौन खिलाएगा? तो प्रभु ने बोल रहे थे, और एक चले गए हैं कोई पे पूरी धाम में, जगन्नाथ धाम में बैठे हुए हैं पुरुषोत्तम महीना, जो जो अपना अपना धाम चला जाते हैं। कार्तिक महीना में पूरा पूरी में एक महीना रहेंगे, बढ़िया है। इसीलिए बोलते गाइड है ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको पहले सुना था, मेरा मन में वो था, डाउट भी नहीं था, लेकिन इस बार प्रभु ने बताया मेरे को, मतलब कोई नहीं है भाई, प्रभु का तो तबियत मैंने 180 डिग्री 180 ब्लड प्रेशर हो गया, तो सारे भक्त कोई नहीं है, तो टिकी प्रभु कोई चला गया, उसका घर बना रहा है, किसी का रिलेटिव का घर बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ब्रह्मचारी वहाँ घर बना रहे हैं, जीजाजी या भतीजा, वहां पे जाकर हम लोग पहुंच गए फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या करना है, वहां पे वृंदावन चले गए, कोई चला गया जगन्नाथपुरी, कोई चला गया दूसरा पुरुषोत्तम महीने में मंदिर खा लिए। भाई यहाँ पे कोई है, एक प्रभु बैठा है, दो व्यक्ति वो सेवा कर रहे हैं सपोज, इसीलिए वो बोलते बोलते हंस दिया, मैं भी जोर से हंस दिया। बोले सब कोई भगवान को ढूंढ रहे हैं, डिफरेंट जगह में मिल नहीं रहा है। कोई वृंदावन में ढूंढा, कोई मायापुर में ढूंढ रहा है, कोई जगन्नाथपुरी धाम में ढूंढ रहा है, ढूंढ के नहीं मिल रहा है। देखिए सॉरी टू से, ये सब फिलोसफी थोड़ा स्ट्रॉन्ग फिलोसफी है। मैं इसीलिए प्रभु से मिलकर रहता हूँ, गाइडेंस इसीलिए, तो हमारा टीचर इस टाइप का फिलोसफी बताया था, ये सब स्ट्रॉन्ग फिलोसफी है। गुरुदेव जहाँ सेवा दिया उसको छोड़ के हम जाके दूसरे जगह में, कोई हमको भगवत धाम जाना है, लिखा कि मैं भगवत धाम जाऊंगा या हम नर्क को जाऊंगा। भाई नर्क को जाऊंगा वृत्तासुर प्यार के, मेरे को नर्क को भेज दो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत पाप किया हूँ, ये पापी शरीर है, मैं तो असुर हूँ, लेकिन मेरे को नर्क को भेजो, लेकिन वहां पे मैं भक्त संग न सर्वभौम्य, ना मेरे को नो परमष्टि, मतलब ना हेवनली प्लैनेट चाहिए, ना अर्थली प्लैनेट चाहिए, ना रसातल चाहिए, कहीं पे भेज दो कोई बात नहीं है,
लेकिन मेरे को भक्त संग दे दो। गुरुदेव जहाँ बोले हैं वही करना है सेवा, लेकिन सब कोई भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान को नहीं मिल रहे हैं। कोई जाके वृंदावन में ढूंढ रहा है, नॉट सेटिस्फाइड। अगर वृंदावन सेटिस्फाइड तो पूरा जाकर रहना चाहिए, फिर इधर क्यों आना है? नहीं, पूरी धाम में सेटिस्फाइड है, जाइए, मना कौन करे? वो धाम है, बहुत बड़ा है। अच्छा, वृंदावन लिखा गया, वृंदावन वृंदावन न रम्य स्थान, तो दिव्य चिंता मणि धाम, बिकॉज वहीं पे कृष्ण है। एक्चुअली कहने से हाईएस्ट धाम है वृंदावन, लेकिन कॉलेज में वो बोलेंगे तो ये तो हमारा जगन्नाथपुर धाम भी हाईएस्ट है। जिसका बारे में, जिस धाम का बारे में बोलेंगे उसी धाम हाईएस्ट है। ऐसा नहीं कि दूसरा धाम छोटा है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मतलब कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ऑफ कोर्स इन्हें लेवल वहां पे पढ़ा है, डिवाइड किया कि द्वारका का ऊपर में वैकुंठ, वैकुंठ का ऊपर में द्वारका धाम है, द्वारका का ऊपर में मथुरा है, मथुरा का ऊपर में वृंदावन है, वृंदावन के ऊपर में राधाकुंड है। ये प्रोसेस ये बोले, लेकिन जो वैकुंठ में है वो क्या लोएस्ट वाला है, इसे बोलना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसे वो भक्त नहीं है, ऐसे बोलना ठीक नहीं है। या जो द्वारका में वो बेकार है, ऐसे थोड़ी है, नहीं है। बट एनीवे, भक्त को डिफरेंट उसका मूड का ऊपर में सेवा मिलता है डिफरेंट जगह में। कहाँ पे? द्वारका में भगवान ऐश्वर्य भाव में है, वहां पे जो सखी जो रानी लोग है तो दासी भाव में रहेंगे। वृंदावन में है तो रस है, वो दूसरा रस है, वहां पे वात्सल रस है, वहां पे मधुर रस भी है, तो और सब अलग अलग रस है, तो उस रस में जो जो रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन वन सेंस बोलने से इसमें मत्स्य रस हाइस्ट हो सकते हैं, लेकिन सॉरी मधुर रस, लेकिन ऐसा नहीं कि मत्स्य रस में तो बेकार हो गया जिंदगी, ऐसा कुछ नहीं। जिसको जिस टेस्ट है वो सब अच्छा है। तो लेकिन यहाँ पे गुरुदेव का सेवा कौन करेगा? भगवत धाम कौन लेके जाएगा? भगवान? नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं ले सकते, ये तो भक्त गुरुदेव ले सकते हैं। गुरुदेव भगवान का पहले जाने के पहले जो गेट पड़ता है, वो गेट में गुरुदेव खड़े हैं। अच्छा, ये भक्त आया, हाँ हाँ हाँ, इसको लीजिए अंदर में, वो ही अलाउ करेंगे और दूसरा अलाउ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव का रिकमेंडेशन में सेवा करना है, लेकिन हम लोग करेंगे भाग जाएंगे, वो दूसरा सेवा करेंगे, अरे यहाँ पे तनख्वाह नहीं मिलता है, वहां पे तनख्वाह मिलता है, उस मंदिर में सेवा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन अच्छा नहीं है। रघुनंदन धाम में कुछ एंजॉयमेंट का रास्ता नहीं है, तो टाउन से दूर है, कौन रहता है इधर, नहीं होगा। तो चलते हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ है। अभी यहाँ पे कितना भक्त आ रहे? ओह 10 भक्त, संडे को 50। अरे वहां तो 500 भक्त आते, अरे वो 500 भक्त वहां तो आपको पूछेगा ही कोई नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पे क्लास देना है, अरे यार छोड़ो यार, थोड़ा सा मायापुर धाम में हमको मिलेगा अगर क्लास देने का चांसेस है, तो मैं बड़ा भक्त हूँ ना, वहां पे मायापुर टीवी में आएगा तो हम बड़ा भक्त है, बढ़िया, तो कोई बात नहीं। नहीं तो कभी कभी वृंदावन धाम में भी आ रहे, इसको वृंदावन में क्लास दिए थे, नहीं हमारे मन में कभी कभी आता है, इसे मैं इसलिए बोल दिया, कोई दूसरा भक्त का नहीं। तो हम लोग आते हैं, उधर मिलेगा तो ठीक है, हाँ, मतलब कुछ तो ABCD पता होगा थोड़ा सा, लेकिन पता नहीं जेड तक पता नहीं है। तो लेकिन लोग अपना अपना स्टाइल में चलते हैं। मैं एक बार किसी भक्त का क्लास सुना, मतलब प्रभु जी मैं गया भक्ति से नहीं रह पाऊंगा, ये क्लास जो है ये भगवत धाम में जाने का इतना कष्ट रास्ता है, ये जो बोले इस टाइप का प्यूरिफिकेशन होना है, तो मैं तो होगा नहीं कभी जिंदगी में, इस जिंदगी में। मेरे को प्रभु ने बोला डोंट वरी, अरे भैया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाता है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री सारे डिपार्टमेंट है ना, नहीं जी जी है। आप सपोज केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो या जानते हो थोड़ा केमिस्ट्री, आप फिजिक्स से आना नहीं जानते, आज जाकर फिजिक्स का क्लास में बैठ गया तो फिजिक्स लेक्चर जैसे बोलेगा आप सुनोगे, क्या सोचोगे? मेरा तो क्या, तो ठीक है। इसलिए कुछ लोग क्लास देते हैं, ठीक है, कुछ लोग खेती करते हैं, वहां पे वो जमीन है, वहां पे कोई फल लगाया, फूल लगाया, वो कोई ओवरऑल मैनेजमेंट को समझ देखता है, प्रभु ने जैसे देखते, नाम नहीं बोले, देखता है। तो उसका मतलब क्या है, जो क्लास दे रहा है वो बढ़िया क्लास दिया, बढ़िया, उसी एक में पुजारी सेवा कर रहा है, तो उसका मतलब वही परफेक्ट हो गया पुजारी, ठीक है, इन अंडर कैटेगरी में है। तो जो दूसरा सेवा कर रहा है, चासी खेती करके आपको खिला रहा है, भगवान को अर्पण कर रहा है, तो वो क्या नहीं है क्या कैटेगरी में? अच्छा, तो इसीलिए डोंट वरी, फिजिक्स लेक्चर का क्लास में जाके केमिस्ट्री लेक्चर जाएगा तो वो हैरान हो जाएगा। अपना अपना डिपार्टमेंट अलग है। प्रहलाद महाराज, बोले प्रहलाद महाराज, आप प्रहलाद महाराज में सुनो भक्ति कैसे किए थे,
आप सोचोगे प्रहलाद महाराज इतना भक्ति किया था, मैं नहीं कर पाया, आप क्या? ऐसा नहीं है। प्रहलाद महाराज आप ऊपर पोजीशन में है, लेकिन भक्ति हाँ डिफरेंट कैटेगरी में आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है। और इसी लाइन में और लेकिन आप अगर प्रहलाद महाराज के बारे में सुन के प्रहलाद महाराज होने के लिए सोचोगे तो आपका तो गया, देन यू विल नॉट बी नोयर। तो इसलिए डोंट वरी फॉर दैट। ऐसे इसी टाइप का भक्त चाहिए जो क्लियर एक इंस्टेंट दे देगा एग्जांपल। आप उसका जितना डाउट है सारे डाउट मैंने फिन फिन होकर क्लीन। तो इस टाइप का है हम लोग। जो ये सिंपल फिलोसफी है, सिंपल, क्योंकि जो फिलोसफी को पता होना चाहिए, गुरु तत्व अगर पता हो गया तो कृष्ण तत्व पता हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे रसोई करने के लिए कोई नहीं है, मतलब भगवान को ढूंढ रहे हैं हर जगह में, डिफरेंट धाम में जाके भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान मिल ही नहीं रहे। प्रभु ऐसे बोले, अरे भगवान सारे जगह में ढूंढ रहे हैं, इस धाम में उस धाम में कोई भगवान मिल ही नहीं रहा है। अगर मिल जाता तो एक जगह फिक्स हो जाता है ना, या सभा में रह जाता है, तो फिर मिल ही नहीं रहे। यहाँ पे भगवान नहीं है, भगवान वहीं पे है। भगवान यहाँ पे नहीं है, रघुनाथन धाम में भगवान नहीं है, सिर्फ मायापुर धाम में है, वृंदावन में है, जगन्नाथपुरी में, यहाँ पे भगवान नहीं है। लोग बोलते हैं वृंदावन में रह गया, यस हमारा गुरु महाराज भी बोलते हैं वृंदावन ये बहुत अच्छा प्लेस है हमारा। वहां जाने से प्रॉब्लम भी एक है, इफ यू आर नॉट प्यूरिफाइड तो आप अपराध करेंगे, फिर नेक्स्ट जन्म में कुत्ता होकर जन्म लेना पड़ेगा लिंग धाम में, या हो सकता है और कुछ बने। बट एनीवे, तो इसीलिए बी कॉशस, बी कॉशस। तो इसीलिए हम लोग इमिटेशन नहीं है। हाँ भक्त है, शुद्ध भक्त है वहां पे वृंदावन में, लेकिन वृंदावन में उजारत है, इतना गर्मी में वो रहते हम देखा है, इतना ठंड में 4 o'clock ठंड में भी एक बार में था 6 डिग्री, और दिसंबर महीना था 6 डिग्री, और तो और भी कम हो जाता है। वहां पे मंगल आरती कोई घर से जाके अटेंड करते हैं, हमारे प्रभु है तो 4 बजे मंगल 4:30 बजे अटेंड करते हैं, मतलब 3:30 बजे 3 बजे उठ के जाते हैं ठंड में, तो मानना पड़ेगा। तो उस टाइप का होने से तो अच्छा है, लेकिन अदरवाइज क्या होगा, धाम में खाली रह रहे हैं, अपराध करते रह रहे हैं। धाम में जाएंगे ना, टोटो वाला से झगड़ा होता है, इतना रुपया क्यों मांग रहा है, तो अपराध हो, गुरुदेव ने मना किया। इस जगह में आप जाके कोई भी लोग से, कोई भी व्यक्ति से आप कुछ भी अपराध नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मतलब इवन इफ इज नॉट ए डिवोटी, सिंस टू बी डिवोटी नहीं है लग रहा है, लेकिन अपराध नहीं करना, धामवासी है तो इसलिए बोलते हैं। तो लेकिन हम लोग का प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ, धाम में जाएगा, धाम में क्या होगा, जाके ऐसे ही हो जाएगा। हम लोग जाते हैं, अरे यार मरने को भी कोई आता है, ये टोटो वाला इतना पैसा लेता है क्यों है। जगन्नाथपुर जाएंगे, अरे वो ब्राह्मण लोग ना अंदर में वो इतना हैकलिंग करते हैं, इतना पैसा मांगते हैं, तो इसलिए हमारा तो वही अपराध हो ही जाएगा। मना किया गया, तो क्या जगन्नाथ धाम में जो हो रहा है या उसका बाउंड्री कहां से, भगवान का बिना सेंस में थोड़ी हो रहा है। तो लेकिन हम लोग सोचते हैं सिस्टम ठीक नहीं है, इतना भीड़ में। साउथ इंडिया का सिस्टम बढ़िया है, साउथ इंडिया सिस्टम देखिए, लाइन में जाते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में क्या हम गया, सपोज वो मंदिर में दीप ही जलता है, भगवान को दिखता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइन में जाए 1 सेकंड खड़ा होगा, देख नहीं पाएगा। यहाँ पे तो जगन्नाथ धाम में आप मुक्का मुक्की होगा, कोई बात नहीं, भगवान जब चाहेगा फिर लाइन बनेगा, लेकिन मुक्का मुक्की जाएगा तो 1 घंटा खड़ा भी हो सकते हो, आप वहां पे दर्शन कर सकते हो। तो जहाँ पे भगवान जैसे सिस्टम बनाया उसी सिस्टम उनका अधीन में हो रहा है, तो साउथ में गलत हो रहा है ऐसा नहीं है। सब जगह में जो जो सिस्टम बनाया गया है वो भगवान का सैंक्शन में बनाया गया, इसीलिए वो सिस्टम ठीक है जहाँ पे जैसे सिस्टम है। जब तक भगवान नहीं चाहेगा वो सिस्टम चेंज नहीं करेगा, तो नहीं होगा। रामायण चलिए आगे एक बार, यार यहाँ पे जो सिस्टम है ना, पुजारी वाला ठीक सेवा नहीं कर रहा है, क्योंकि साउथ में पुजारी सेवा बहुत अच्छा होता है, भगवान का विग्रह सेवा, ये ठीक नहीं है। मन में आया यहाँ पे कुछ चेंजेस चाहिए। रात में जगन्नाथ जी उनको किक लगाया, बोलते हैं ऐसे ही, बट एनीवे किक लगा जो भी है। नेक्स्ट सवेरे देखा जगन्नाथपुरी में नहीं, जहाँ के सीमांचल में पहुंच गए, रात राती ऑनलाइन ट्रांसफर। तो सरी टू से रामानुजाचार्य नॉट एन ऑर्डिनरी डिवोटी, इस लक्ष्मण का अवतार है, बलराम का मतलब। तो लेकिन जगन्नाथ जी तुम्हारा सेवा उधर रखो, तुम जैसे करते हो साउथ में उधर चला जाओ, इधर नहीं रहना है, इधर का जो सिस्टम है मैं देख रहा हूँ। तो ऐसा है सिस्टम। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेद का जो है ज्ञान सबके लिए चाहिए, और इसका सेकंड पार्ट रह गया था कि जो विप्रो लोग को वो बहुत अच्छा से धन संपत्ति दिया, उनको रिम्यूनरेशन दिया,
और खुश करके भेजा। उसमें काऊ दिया, गोल्ड दिया, भूमि दिया। हम तो सोचते थे कुछ पैसा कुछ दे दिया होगा, नहीं ये सब दिया, काऊ दिया, वो गाय है, तो सब कुछ दिया। और युधिष्ठिर महाराज ने उसका बाद सैटिस्फाई करके भेजा। दक्षिणा ठीक से नहीं देगा और जो भक्त जो ब्राह्मण है सैटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो यज्ञ सक्सेसफुल नहीं होता है। इसीलिए वो उनका आशीर्वाद दिया, वो कैसे खुश हो गया और भी आशीर्वाद दे दिया होगा परीक्षित महाराज को। तो इसलिए हम तो पैसा हमको भगवान दिया, हम पैसा घर में के पैसा कमा रहे हैं, तो ये ब्राह्मण लोग को वैष्णव लोग को चलाना, कुछ हेल्प करना, ये किसका काम है? हमारा काम, हमारा ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो लोग कैसे, वो तो नौकरी नहीं किया। हम लोग बिना नौकरी में तो जी नहीं सकते, हम नौकरी करके जीते। तो इसीलिए हमारा जो लक्ष्मी है भगवान का सेवा में लगेगा, भक्त का सेवा में लगेगा। हाँ, तो आई वॉज रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी बिकॉज गणेश बाबू ने प्रपोजल दिया था उनका घर में प्रोग्राम करेंगे, एक दो मेरे को बुला रहे थे जाने के लिए, तो आई टोल्ड लेट अदर डिवोटी कम्स। तो आज हमारा ऑफिस में मैं लोकेशन शेयर कर दिया रेल बिहार में 5 बजे। हाँ, शेखर प्रभु भी क्या आ सकते हैं, सब कोई 5 बजे आइए, रिक्वेस्टेड। तो वहाँ पे 5 से 7 थोड़ा सा कुछ फाइनल प्रसाद कुछ होगा, जो भी होगा उसका होके जा सकते हैं। आज छुट्टी है, द्वादशी है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एकादशी इतना इम्पोर्टेंट है, द्वादशी भी उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एकादशी में फास्टिंग करते हैं, द्वादशी में फास्टिंग। और भक्त द्वादशी में हमारा संजीव प्रभु ने हर द्वादशी में देखता था सारे कुछ भक्त को बुलाएंगे, कीर्तन करेंगे, उनको प्रसाद दिलाएंगे और देंगे और लक्ष्मी देखे भेज। तो एनीवे, तो द्वादशी में भक्त लोग इकट्ठा होना, भगवान ग्लोरिफिकेशन करना, प्रसाद पाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लोग इसको जानना चाहिए। तो द्वादशी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर भक्त। हरे कृष्ण। लोग का छुट्टी है, दिन भर फ्री है, शाम को पहुंच जाइए 5 बजे, 5:30 बजे इसमें आ जाइए। एनीवे, और फिर जल्दी हम लोग छुट्टी करेंगे, इसीलिए 5 बजे बोल रहे हैं, सो दैट कोई दूर से आ रहे हैं, रात 9 बजे 10 बजे जाना, छुट्टी है तो आज। हरे कृष्ण। नितेश प्रभु भी फ्लाइट मैनेजर, ड्रोन में चढ़ के आ सकते हैं। ड्रोन आजकल, कल देख रहे थे एक लुफ्थांसा, परसों लुफ्थांसा का 29 फुट का एक ड्रोन बना दिया, एग्जैक्टली लुफ्थांसा का इसमें कोई है, और उसमें देख रहा था तो 29 फीट का एक आदमी बना है ड्रोन, मतलब वो एयरप्लेन जैसे है, हाँ बैठ सकता है। तो क्या क्या कर रहे हैं आदमी। लेकिन पुष्पक यान बनाएगा तो भगवान आराम है, कुछ ना पेट्रोल डीजल कुछ डालना पड़ेगा क्या, ना साउंड, कुछ नहीं है। और ये एक्सपांड कर सकता है। पुष्पक यान में आप 2 आदमी बैठेंगे, 2 हो जाएंगे। सपोज लॉर्ड राम एंड सीता जी बैठेंगे, हनुमान जी, तो वो छोटा हो जाएगा, या लक्ष्मण जी। उसको विभीषण का साथ में सारे लोग को लेकर आए वहां से लंका से अयोध्या, ये एक्सपांड हो गया। जितना लोग बैठे कोई बात नहीं, हम एक्सपांड कर सकते हैं कितना, अनलिमिटेडली नहीं कर सकते ना। हाँ, तो पुष्पक जाने बिना तेल डालने से चल जाता है, ट्वेल नहीं है, ऐसे बनाना चाहिए। हम लोग को भी सोचा नहीं, एक्सपांड हो जाता है आपका हिसाब से। आदमी का धाम भी एक्सपांड होता है, धाम छोटा हो जाता है। अरे वो पल बालक लोग वहां से चला जाता था गाय चराने के लिए 10-12 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, कैसे जाता था? वो जा सकता था, जा सकता भी है, लेकिन धाम एक्सपांड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। भगवान को चलना है तो 10 किलोमीटर हो जाएगा, आधा किलोमीटर आ जाएगा, आधा किलोमीटर पहुंच गया, फिर एक्सपांड हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, धाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बन सकता है क्या? बढ़िया होगा। हमको कटक जाना है भाई, कटक आ जाओ पास में, फिर हम बैठ जाएंगे 2 स्टेप में, फिर कटक अपना जगह में चला जाएगा, हम वहां पहुंच गए, वहां लगभग मिल जाएंगे। अभी करेंगे वृंदावन, वृंदावन एक्सप्रेस, यहाँ आ जाइए, नहीं तो हम वृंदावन चले जाइए, कोई बात नहीं है। अभी इतना पैसा खर्च के बुर्ला जाना है, क्यों जाना है? बुर्ला था उधर, इधर आ जाएंगे। तो हम लोग 1 स्टेप 2 स्टेप या हाफ किलोमीटर चला जाएंगे, बुर्ला पहुंच गए, फिर चलेंगे, ऐसा होगा। ये धाम होते हैं। धाम में है, पूरी में रेडियस बोलना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए धाम। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से बोलना, उसमें तो नॉर्मल टाइम में सपोज 50,000 लोग रह रहे हैं। अरे जो जथात आएगा तो 15 लाख लोग आ गए, नवकलर में 50 लाख लोग आके चला जा रहे हैं। कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। 50 लाख एट ए टाइम नहीं रहते होंगे भी, तो 10 लाख तो रहते हैं। 10 लाख कहाँ रहते हैं? धाम एक्सपांड करता है, पता नहीं हम लोग। धाम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड हिमसेल्फ, बलराम है। हरे कृष्ण। ये सब रहस्यमय चीज है, जितना चीज रहस्य भगवान का पास में है ना, रहस्यमय है। यहाँ पे हम लोग समझ नहीं सकता उसको, अपना जो
मेटेरियलिस्टिक बुद्धि में इसको समझना बियॉन्ड साइंटिस्ट का, जितना भी बड़ा साइंटिस्ट का इसमें घुसेगा नहीं है, नहीं घुस सकता है, वो कर ही नहीं सकता उसको। कोई ऐसे एरोप्लेन कभी निकाल सकता है विदाउट कुछ, चल जाएगा और एक्सपांड कर जाएगा, मिलियन 2 माइल एक्सपांड भी हो जाएगा, 3 माइल हो जाएगा, जितना माइल कर सकता है क्या? बोलते हैं कि हम डेथ को रोक देंगे, कब है? पोस्ट डेटेड चेक, हाँ हाँ हाँ, 5,000 साल का बाद में, हाँ, उस टाइम तुम रहोगे, 80 मन घी होगा ना, राधा नाचेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हरे कृष्णा। हाँ, कोई एनीबॉडी? पहले नया भक्त को हम लोग बोलते हैं सैकत जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। कुछ डाउट है? नहीं सर। आज का हाँ बोलिए। तो आज का डिस्कशन में जो सीखने को मिला है सर, एक्चुअली हम लोग को जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए जो हम लोग सोचते हैं, ये कर्मकांड के आधार में आता है। तो और ज्ञान कांड उसका ऊपर है, ज्ञान कांड, जो ज्ञान कांड में हम लोगों का मुक्ति मिलता है, और उसका ऊपर है हमारा जो जहाँ पर कोई मेटेरियलिस्टिक कोई कुछ नहीं रहता है, उसका खाली भक्ति रहता है। तो हम लोगों को खाली भक्ति का ऊपर जाना है और सोचना है जो कैसे हम लोग भक्ति कर पाएंगे, कृष्णा को सेवा में लग पाएंगे, भगवान का सेवा में हम लग पाएंगे। तो छोटा छोटा चीज देखना पड़ेगा और अपने को प्यूरिफाई करना पड़ेगा उसी के हिसाब से। थैंक हरे यू। कृष्णा सर। थैंक यू। तो भक्ति में आके हमको सुख शांति नहीं चाहिए, हमको आनंद चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो Yes, और सतत दुख मिले, फिजिकल डिफिकल्टी आएगा, बहुत लोग को भी कैंसर हो रहा है, बहुत लोग को हम बांग्लादेश में पिटाई हो गया, हाँ, तो फिर बोल सकते हैं भगवान क्या कर रहा है? ऐसा नहीं है, भगवान क्या कर रहा है? भगवान कर रहा है ग्लोरीफाई करने के लिए, हो सकता है भक्त को, वो बांग्लादेशी भक्त को किसको पता था, जिसको कोई भक्त है ना, वो प्रेसिडेंट, उनका नाम मैं भूल गया, तो उनको जेल में गया, तो उसका मतलब उनको जितना लोग नहीं पता था, भगवान उसको ग्लोरीफाई कर दिया कि मेरे लिए जेल गया। अरे भगवान खुद तो जेल में शुरू हुआ उनका लाइफ, हाँ, मतलब दिखाना है कि भगवान खुद जेल में रहा, भगवान का कितना डिफिकल्टी हुआ होगा। तो भगवान को ऐसा नहीं लगता है, भगवान का जो उनका भगनी का बेटा भांजा अभिमन्यु, भगवान देख रहे हैं अभिमन्यु मर रहे हैं, 16 साल का बेटा है ना, तो उनको क्या अच्छा लग रहा है? उनका अच्छा लग रहा है पांडव लोग का बेटा मर रहा है, 5 बेटा मर गए, वो इतना, ये सब उनका क्लोज पर्सन डिवोटी है और ये उनका मर रहे हैं, या दुख मिल रहा है, तो वो उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, वो सिस्टम ऐसा ही है, तो सुख दुख का ऊपर में है सिस्टम। हम लोग उस सिस्टम में पहुंचना मुश्किल है, एक्चुअली सोचना मुश्किल है, सोचना भी बहुत डिफिकल्ट है, इसको कंसीव करना इन दिस थिंग्स इज डिफिकल्ट। तो एनीवे, तो आप ठीक है, आप शाम को 5 बजे आ सकते हैं, एंड आपका घर फ्री है तो आपका मैडम को मिला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनीवे इट्स अप टू यू। हरे कृष्ण। नितेश बाबू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम तो ऑल डिवोटीज। क्लास बाकी के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज पता चला कि धाम में मतलब जाने के बाद जो सिस्टम है उसके बारे में, तो मतलब आजकल तो हर जगह भीड़ बढ़ ही गया है, तो फिर मतलब देख करके या कोई ऐसे करता था कुछ न कुछ बोल देते थे, नहीं पता था कि मतलब, तो जो आप बोले कि मतलब जो भी है तो भगवान के उससे हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा वो पाप हो जाएगा किसी के बारे में कुछ भी बोलना। तो इस चीज को अब आगे से मतलब बहुत ख्याल रखेंगे, धाम में जाने के बाद कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब जो भी है मन में भी मतलब सोचेंगे नहीं, जो सोचते थे भीड़ भाड़ या धक्का मुक्की कहीं पे हो रहा होता है, आगे कुछ वो करते हैं किसी को, तो वो सब चीज नहीं बोलेंगे, अब मन में नहीं सोचेंगे। तो ये बहुत बड़ा चीज पता चला। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हम कटक में जाएंगे ना, ट्रेन है बहुत सारा, अभी भुवनेश्वर में होगा, वो ट्रेन में कितना
गंदा है सब, है ना, हम लोग बोल देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आप धाम में जाएंगे बोलेंगे ये धाम में सब खराब है। क्यों खराब है? हमको खराब दिख रहा है, मालूम है? उसका ये है, एग्जाम्पल हमारे टीचर देते हैं, एक पानी का ग्लास है, उसका ऊपर में ऑयल डाल देते हैं, तो क्या पता चलता है? पानी नीचे है दिखता नहीं है, ऊपर में दिखता है ऑयल दिखता है। तो व्हाट यू फील? सिमिलरली धाम में भगवान ऐसे व्यवस्था भी करते हैं। देखिए इसका क्या ये बताता हूँ। धाम में आपको देखेंगे गट्टर है, ये तो आउटसाइड लुक के लिए गट्टर दिखता है। धाम में देखेंगे वो कुत्ता है, पिग है, वो सब है। तो ये किस लिए बनाया गया मालूम? इस तरह का रखते हैं सिस्टम। भगवान ने क्यों किया इस तरह का? फिर वहां धाम में इस तरह क्यों रखा है? तो जो इंटरेस्टेड भक्त नहीं है वो आ नहीं जाएंगे, जो भक्ति में नहीं है वो नहीं जाएंगे। जाएंगे क्या होगा? साइट सीइंग करने के लिए जाएंगे, वहां पे भीड़ भाड़ बढ़ाएंगे और बढ़ गया। आजकल तो वृंदावन में सैटरडे संडे यू कैन नॉट गो इनसाइड, वहां पे गाड़ी पार्किंग भी नहीं कर सकते हो। तो और दूसरा दिन में भी ऐसे हो गया मोस्टली, लेकिन सैटरडे संडे तो घुस ही नहीं सकते। कोई मैंने दिल्ली का मेरा फ्रेंड बोला था सैटरडे संडे कभी नहीं जाना, मैं भी कितना बार गया सैटरडे संडे में, बहुत मुश्किल है। मतलब यू कैन नॉट जस्ट भगवान को दर्शन शिक्षा नहीं कर पाओगे वहां पे, बाकी बिहारी जी के जगह एक सेकंड में भी दर्शन नहीं होगा। तो हम लोग जाते हैं, लेकिन भगवान से प्यार से दर्शन करना या शांति से बैठ के कुछ करना वो कर ही नहीं सकते हो। तो दैट्स व्हाई बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए इसको टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाना है, भगवान नहीं चाहते इसको टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए। अभी वहां पे वृंदावन में होटल रेडिसन खुल गया, रेडिशन होटल, आई थिंक रेडिशन है, हाँ। तो बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल भी आ गया, अभी लोग जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। क्या है, जितना दिल्ली पास में मथुरा, ये नोएडा, ये सब गुड़गांव, ये सब आ जाते हैं सैटरडे संडे को गाड़ी लेके आगे। क्या हम गए थे धाम, इसलिए कर्मकांड के लिए आते हैं लोग, बहुत लोग। बहुत जो कर्मकांड है या नहीं तो एकादशी है परिक्रमा करेंगे, इसलिए करें परिक्रमा पूरा बढ़िया से करते हैं। हाँ, रातों रात तो परिक्रमा करते हैं बहुत लोग। तो वहाँ पे राधा कुंड का परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, वो जाते हैं। परिक्रमा करने से क्या होगा, उनको कुछ अच्छा मेटेरियलिस्टिक फल मिलेगा, इसलिए जाते हैं। लेकिन भक्ति के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, इसलिए भगवान चाहते हैं जो सिंसियर भक्त है वो आए हैं, ठीक है वो रहे। दूसरा लोग आएंगे अपराध करेंगे, हो सकता है टेम्पररी रिजल्ट के लिए आएंगे, इसलिए। अरे कुछ तो इसलिए हमें प्रभु ने इसलिए बोलते हैं भीड़ भाड़ में हम दर्शन करना नहीं चाहते। मैक्सिमम टाइम वही अवॉइड्स भीड़ भाड़, शांति से जाके दर्शन करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। श्याम कृष्ण प्रभु, चित्त प्रभु शाम को अगर सुविधा होगा तो आएंगे। हरे कृष्ण। हाँ, श्याम कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो ये जो श्लोक आज डिस्कशन हुआ बहुत ही मतलब एग्जाम्पल है, वो क्या जो ब्राह्मण आए थे, जो एक्सपर्ट कोविदा जो आए थे, तो उनको समटसली उनको भोजन कराया और उनको फिर जो दान दक्षिणा है बहुत भर भर के जो देते हैं, तो उनका पूरा मतलब खुश कर देना है, उनको देख के पूरा आशीर्वाद दे देंगे। और उनका मन जो आते वक्त जो खुशी था, जाते वक्त ज्यादा खुश होके जाएंगे। तो आशीर्वाद वो करके जाते हैं, जो कि जो आशीर्वाद फलता है, मतलब उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाता है। तो ये जो जो राजा लोग हैं, जो अपने सामर्थ्य के अनुसार तो अपना दिखाए हैं। तो ऐसे गृहस्थ आदमी जो है, वो जैसे कोई मांगलिक काम होता है, तो ये सीख के जो हम आप जैसे बता रहे थे कि उनको ऐसे द्वादशी हो गया तो संजीव प्रभु करते हैं, तो ऐसे उनका आशीर्वाद मिलता है। तो वो आशीर्वाद हर जो भक्त है उनको चाहिए, सारे भक्तों का आशीर्वाद चाहिए। तो ये एक भगवान का इवेंट है और मौका भी है। तो इसलिए वो जो भागवतम में लिखा गया है, परीक्षित महाराज से बड़े भक्त हुए, शुद्ध भक्त हुए और भगवत धाम भी गए। तो उनके जो प्राकट्य में जो भी हुआ था, युधिष्ठिर महाराज जो किए थे, तो से भक्तों की लीला है वो समझना है, वो पढ़ना है, इसलिए भक्ति बढ़ता है। तो ऐसे आप इसका जो है सुना रहे हैं सबको,
डेली भागवतम, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत कृतज्ञता है। हरे कृष्ण। Thank you. This is a service, so I am trying to do it. Jagata Pita Krishna Jai Tamatu Nasa. Chitta Prabhu Hare Krishna. Hare Krishna Chitta Prabhu. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज मध्य बहुत बात जानने को मिला जो दुर्लभ है, और ये आपके गुरुदेव आपके माध्यम से मिल रहा है। ये तो है साधु संघ का ये फल है। ये जो ज्ञान है ऐसे नहीं मिलता सहज से, मगर आपके द्वारा इजीली प्राप्त होता है, इसीलिए थोड़ा शायद इसको हल्के में ले रहे हैं शायद। मगर ये जो ज्ञान है गुण ज्ञान, और ऐसे नहीं मिलता है सब कुछ सभी को। तो आज बहुत कुछ जानने मिला। भगवान तो हर वस्तु में कण परमाणु में है, दिल में है, और जिसको हम धाम जानते हैं वही धाम भगवान अभिन्न है धाम भगवान में। तो जिस धाम को मान लेते हैं ये धाम है, तो इसमें जो भगवान है, और दूसरे में जाएंगे क्या अपराध होगा, कैसे हो सकता है, ये सब बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि वो लेवल में जाने से ही ये महान जो धाम है इसको जा सकते हैं, और वो अपराध नहीं करना है। ये बहुत ये आप एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, और जितना जानते हैं, तो ये सब बहुत उपादेय है सभी के लिए। तो ये सब जानना जरूरी है। और जैसे रघुनाथ धाम खाली हो गया जैसे बोल रहे हैं, इधर भी भगवान है मगर आप दूसरे जगह जा रहे हैं, ये सही बात है। भगवान उधर भी है इधर भी है। और दूसरा है जो भक्ति में जो बोले गोल्डन वर्ड, भक्ति में सुख शांति जरूरत नहीं है, आनंद मिलना चाहिए। कोई पाने का इच्छा से करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसे भक्ति करने से क्या होता है कि अपने आप सब आ जाता है, कोई माने मांगना नहीं पड़ेगा, भगवान दे देते हैं नहीं मांगने से। तो सुख शांति का खोज में भक्ति करना नहीं है। जो आनंद मिलता है आनंद तो मिलेगा, उससे दूसरे प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट ये भी भगवान भी साथ में दे देते हैं नहीं मांगने से। तो मांगना भी नहीं है कुछ, और क्या मांगना चाहिए वो भी आपने बहुत बार बताए। भगवान को क्या मांगना है, भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए नहीं मांगना है। कैसे भक्ति बढ़ेगा, क्या होगा, अपना भक्ति में कैसे